Good morning, student. Now, in the previous period, in the previous class, we already learned how to find the HCF of two numbers by using Euclid division lemma. So, by using Euclid division lemma, we can find the HCF of the two number or three numbers. Okay. Now, here, next questions are second question, fourth, and fifth questions we take here. Show that any positive odd integer. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने क्या पढ़ा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? A is equals to BQ plus R. A is equals to BQ plus R. A means dividend. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Means every composite number or any two numbers can be written in this form, that is A is equals to BQ plus R. एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई कंसीडर 8 and 6, यदि मैं 8 और 6 को कंसीडर करता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 is equals to 6 into 1 plus 2. Got it? Means 8 is divisible by 6, quotient is 1 and the remainder is 2. Means 8 is equals to 6 into 1 plus 2. Now similarly here also we can use this Euclid division lemma to solve this example. Okay. Now, what is the question? Show that means आपको proof करना है, show करना है any positive odd integer, means कोई भी positive odd integer. You know that what is meant by even and what is meant by the odd. Even means the number which is divisible by 2, and the number which is not divisible by 2 is called as a odd numbers. Okay. Odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. यानी q क्या है? एक इंटीजर है. q कोई तो भी एक इंटीजर है. क्वोशिएंट बोलेंगे या इंटीजर बोलेंगे. Okay. Now here we will consider the first, the 6. ये 6 important है हमारे लिए. क्यों 6 important है? Because 6 क्या शो कर रहा है मुझे? डिविडेंड. 6 क्या शो कर रहा है मुझे? डिवाइजर है. 6 क्या शो कर रहा है? डिवाइजर. क्योंकि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मींस कोई भी नंबर ये फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसा ये वाला जो फॉर्म है, दैट इज a इज इक्वल्स टू bq प्लस r. अब ये जो b का जो वैल्यू है, ये b का वैल्यू है 6. b का वैल्यू कितना है? 6. यदि ये b का वैल्यू 6 है तो नेचुरली r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 से छोटा. क्यों 6 से छोटा आएगा? उसका भी देख लेते हैं आप लोग. देखो, चेक करो. 8 इज डिविजिबल बाय 6. ओके, तो 8 6 1 is 6, आपको मिलेगा 2. मींस दिस 2 इज ऑलवेज लेस देन divisor. Means remainder is always less than divisor. ये बात आप ध्यान में रखेंगे. यदि रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया यहां पर 8 और यहां पे ले लिया मैंने 2. 2 1 जा 2 दे दिया, ये आ गया आपका 6. तो इज इट पॉसिबल? दिस डिवीजन इज करेक्ट? No, this division is not correct. This is the wrong division. Means what we consider here? 2 4s are 8. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 4s are 8. Means आपको मिलेगा यहाँ पे remainder 0. So remainder is always less than divisor. Remainder क्या होता है? Divisor से कभी भी छोटा ही होगा. अब यहाँ पे divisor आ गया 6. Divisor आ गया 6. इसका मतलब यदि divisor 6 है, it means that the remainder is what? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 and बस 5 तक ही होगा. Means here as divisor we can consider that as divisor a6. Therefore remainder is equals to 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5. यहां तक पॉसिबल. अब रिमाइंडर है 0 1 2 3 4 5, तो हम कैसे लिखेंगे कोई भी नंबर को? दैट इज n. n इज द नेचुरल नंबर.
any natural number we can consider. So n is equals to या तो 6q रहेगा आंसर, because 6q plus 0, यदि आपको नहीं समझ में आता तो मैं 6q plus 0 लिख सकता हूं उसको, या फिर 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. ये पॉसिबिलिटी है. Means by Euclid division lemma, if the divisor is 6, it means that there are 5 forms. 5 to 6 forms are there, and that 6 forms are nothing but the 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. हमने यही क्यों लिया? यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें जो शो करना है वो क्या शो करना है? डिवाइजर एज अ 6, ये शो करना है मुझे. अब यहाँ पे हम लोग 1 by 1 कंसीडर करेंगे. n is equals to, पहले कंसीडर किया मैंने 6q. 6q plus 0 is nothing but the 6q. Okay? 6q plus 0 is nothing but the 6q. अब 6q को लिखता हूं मैं, 6 को यहां से कॉमन ले लिया 2, यहां पे आ जाएगा 3q. Got it? मान के चलो ये ऑड है, मगर यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 2. ऑड इनटू इवन इज ऑलवेज इवन. यहां पे 3 है तो 3 2 जा 6, यहां पे 5 है तो 5 2 जा 10, यहां पे 7 है तो 7 2 जा 14. मींस ये 2 क्या शो कर रहा है मुझे कि यहां पे कोई भी वैल्यू यदि डालेंगे आप, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालिए तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा. सो दिस नंबर इज व्हाट? इवन. ये समझ में आ गया? हम लोग चेक कर रहे हैं 1 by 1 कि इसमें से कौन से इवन है और कौन से ऑड है. दूसरा हम चेक करेंगे यहां पे 6q plus 1. गॉट इट? पहले चेक करेंगे हम लोग 6q plus 1. अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ेंगे. यहां से कॉमन ले लिया 2, ले सकते हैं कॉमन. यहां पे आ गया आपका 6 में से कॉमन आ गया तो 3q और ये आ गया प्लस 1. अब ये आ गया आपका इवन. इसका आंसर क्या है? इवन. अब इवन प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड. क्यों? देखो इसका आंसर 6 है तो 6 प्लस 1 क्या होगा? 7. इसका आंसर 10 है तो 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11. इसका आंसर 14 है तो 14 प्लस 1 क्या आएगा? ऑड. 15, दैट इज ऑड. तो ये नंबर हो गया आपका ऑड. गॉट इट? अंडरस्टूड? तीसरा देखो क्या दिया है? 6q प्लस 2. यहां से कॉमन क्या लेंगे हम लोग? 2 कॉमन लेंगे. तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बना? चेक करो, यहां पे 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका 3q plus 1. अब ये है ऑड. ऑड इंटू 2 दैट इज ऑलवेज इवन. ऑड इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन. तो ये नंबर हो गया इवन. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 6q plus 3. यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग. क्या कॉमन लेंगे? यहां से कॉमन नहीं ले सकते, यहां पे कॉमन लेना पड़ेगा हमको. 2 दैट इज 3q plus 3. 3q plus 3. Now see, this is even. Even plus 3 always odd क्योंकि odd number है. 4 plus 3 7. 6 plus 3 9. 10 plus 3 13. It is always odd number. After that 6q plus 4 लिया. कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? 2 कॉमन ले लिया. अब 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 3q plus 2. ओके? अब ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली वो क्या होने वाला है? इवन. सो दैट इज ऑफ इवन नंबर. नेक्स्ट वन, द लास्ट इज व्हाट? 6q plus 5. कॉमन, यहां से कॉमन आ गया 2, ये बचेगा 3q एंड हियर प्लस 5. अब 5 क्या है आपका? ऑड. सो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड. इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड. तो इसमें से जो हमने 6 पार्ट देखे, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 एंड 6q plus 5, इसमें से कौन से इवन है और कौन से ऑड है? तो ये इवन है तो ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको क्या चाहिए? ऑड. ये चलेगा मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी चलेगा, ये नहीं चाहिए और ये चलेगा. अब ये किसके फॉर्म में जरा चेक करो. 6q plus 1 दिख रहा है? मैंने 6q plus 1 ये है हमारे पास. उसके बाद में दूसरा 6q plus 3 ये भी है हमारे पास. और तीसरा जो है 6q plus 5. Therefore we can show that any positive odd integer, therefore any positive
odd integer is of the form कौन से फॉर्म में है वो देखो जरा चेक करो 6 cube plus 1 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. So in this way you can solve this example. Okay, now the next question is show that the square of any positive integer. ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मींस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m यानी ये फॉर्म में रहेगा या फिर ये फॉर्म में रहेगा उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा इसके पहले के एग्जांपल में हमने देखा है क्या देखा 6 यदि डिवाइजर है तो उसके रिमाइंडर क्या क्या आएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे ये दिख रहा है आपको देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या दिख रहा है 3m plus 1 3m plus 1 यानी इसका मतलब ये 3m है इसका मतलब क्या है वहां पे 3m plus 0 this is 3m plus 0 and this is 3m plus 1 3m plus 0 3m plus 1 3m plus 2 3m plus 3 3m plus 4 3m plus 5 3 like this। तो ये 3 से ऊपर नहीं होगा ना तो 3 होगा या 3 से ऊपर होगा why because divisor कितना है आपका 3 as the divisor is 3 तो remainder is what 0 1 and 2 only 0 1 and 2 क्या होगा डिवाइजर 0 1 and 2। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग as divisor is 3 therefore remainder is equals to क्या क्या होनी चाहिए 0 1 2 बस 0 1 और 2 therefore what we write here the value of n is the natural number तो वो कैसे लिखेंगे रिमाइंडर 0 लिया तो क्या लिखेंगे 3q plus 0 आ गया पहला वाला। So as the divisor is 3 it means that remainder is what 0 1 and 2। अब रिमाइंडर 0 1 2 है तो n की वैल्यू कैसे आएंगी 3q plus 0 3q plus 1 and 3q plus 2। Now what we find here the square। अब इसके क्या करना है मुझे स्क्वायर्स करना है तो सबसे पहले n is equals to क्या लेता हूं मैं 3q because 3q plus 0 is nothing but 3q। ओके अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे therefore n square is equals to 3q and its square that is of equals to 3 का स्क्वायर हो गया यहां पे कितना 9q square। ये समझ में आ गया। अब 9 square q square को मैं कैसे लिखता हूं 3 in bracket 3q square लिख सकता हूं मैं। अब मैंने क्या किया ये जो 3 है उसको as it is लिखा और ये जो इसका वैल्यू है इसकी जगह पे मैंने लिखा m where m is equals to 3q square ले सकता हूं। तो देखो क्या मिला मुझे n square का वैल्यू क्या आ गया 3m आ गया। दूसरा n is equals to क्या है 3q plus 1 है that is n square is equals to 3q plus 1 and its square करेंगे हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए इसलिए स्क्वायर करने के लिए a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिस इज ऑफ योर a and दिस इज ऑफ योर b। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ऑलरेडी a square plus b square a plus b होल स्क्वायर का सो a square ओके plus 2ab so 3 1 3 2 6 that is 6q plus 1 समझ में आ रहा है ना 9q square plus 6q plus 1 इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग क्या कॉमन लेंगे इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा 3q square plus 3 2 6 2q plus 1 मिलेगा। Now we will put here instead of this value we will put m that is of equals to where रख सकते हैं ऐसा नहीं है एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती m की हम रख सकते हैं मैनेज करके where m is equals to 3q square plus 2q आ गया क्या है आपका 3m plus 1 मैनेज करना है। तीसरा वैल्यू लेंगे n is equals to 3q plus 2 so n square is equals to 3q plus 2 और उसका क्या हो गया स्क्वायर यहां पे भी a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे so 9q square plus 3 2 6 3 2 6 2 12
12q प्लस 2 टू ज़ा 4। गॉट इट। अब यहां पे कॉमन क्या आ सकता है वो चेक करेंगे। गॉट इट। अब इसको पहले कैसे लिखेंगे, देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, यहां से कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, तो यहां पे बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 इज 4q प्लस 1 और लास्ट में आ गया 1। अब मैं क्या करता हूं, इसके जगह पे रखता हूं m प्लस 1। मींस हमको क्या मिला, स्क्वायर करने के बाद 3m मिला, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3m प्लस 1 मिला, और 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर करने से आपको क्या मिला, 3m प्लस 1। मींस तीनों केसेस में आपको या तो मिलता है 3m, या फिर मिलता है 3m प्लस 1, या फिर मिलता है 3m प्लस 1। इट मींस दैट एवरी, मींस लास्ट में क्या सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, सो एवरी द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट वाला क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m, 3m plus 1 and 3m plus 1 only. Okay? Now show that अब यहां पे square of any positive दिया है, यहां पे दिया है cube of any positive, वहां पे हमने square किया है और यहां पे क्या करेंगे cube, दोनों बातें की। ओके, अब see show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। अब मैं यहां पे डिवाइजर 9 भी ले सकता हूं या फिर मैं 3 भी ले सकता हूं। क्यों? बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 9, सॉरी 9 इज डिविजिबल बाय 3। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 3 का क्यूब भी करेंगे तो भी उसमें 9 आ सकता है, क्योंकि 3 into 3 into 3, 3 3 is 9, 3 is 27। ओके, तो यहां पे यदि मैं 9 कंसीडर करता हूं तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा 8 तक, है ना। जैसे मैंने यहां पे कंसीडर किया डिवाइजर 9, डिवाइजर 9 कंसीडर करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हम सबको इतने भी जितने भी है यानी टोटल हो गए 9, तो 9 का हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, and that's why I am taking as a divisor is what, 3। क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, डिवाइजर 3 कंसीडर कर रहा हूं। therefore n is equals to या तो 3q रहेगा, समझ गए ना, q 3q लिया मैंने क्योंकि 9 is divisible by 3, इसलिए। दूसरा क्या हो सकता है, 3q plus 1 या फिर 3q plus 2, तीन ही मिले मुझे। यदि मैं 9 कंसीडर करता तो पता है क्या मिलता, आप ही बताइए क्या मिलेगा, 9q, 9q plus 1, 9q plus 2, 9q plus 3, 9q plus 4, 9q plus 5, 9q plus 6, 9q plus 7, 9q plus 8, यहां तक मिलेगा, क्योंकि 9q plus 9 तक नहीं मिलेगा, 9q plus 8 तक मिलेगा। और ये सभी को फिर हमें क्या करना पड़ता, क्यूब करना पड़ता, और सभी का क्यूब करके चेक करना पड़ता कि सही में 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 यही आता है या फिर और दूसरा कुछ आता है। तो आएगा तो वही, दूसरा नहीं आएगा कोई, आएंगे यही, क्योंकि बोला है, शो करना है मुझे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हमने क्या कंसीडर किया, ये तीन ही कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर मैंने क्या कंसीडर किया है, 3, एंड दैट्स व्हाई हियर 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2। तो वन बाय वन चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे n is equals to 3q। ओके, तो n क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना है तो क्यूब करना पड़ेगा। 3q का क्यूब किया, 3 का क्यूब हो गया 27 और q का हो गया q। कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन लिया, यानी फैक्टर्स क्या करेंगे, 3 into 9 q, इसको कंसीडर करता हूं मैं m, so that is of equals to 3 into m, where m is equals to 9q। Got it? मैंने पहले के एग्जांपल में दिया है m is equals to 3q square, m is equals to 3q square plus 2q, यानी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा n is equals to 3q plus 1 लिया, so n cube is equals to 3 cube, q plus 1 और उसका क्यूब। क्या आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, a plus b होल क्यूब,
क्या है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब। गॉट इट? फॉर्मूला आपको ढूंढना है, आपको लगाना है और कैलकुलेशन देखना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो 27 सॉरी पहले 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 3 जा 9, सॉरी ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 क्यू प्लस 1। कॉमन, ये तीनों में कॉमन है कुछ ना कुछ। देखो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। सो बाय टेकिंग 3 कॉमन तो क्या मिलेगा? 9 क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू एंड हियर लास्ट में 1। नाउ फॉर द होल टर्म वी विल कंसीडर द m। पूरे टर्म के लिए क्या कंसीडर करेंगे? m। सो व्हाट वी विल गेट? 3m प्लस 1 where m is equals to 9q plus 9q square plus 3q। तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? 3m plus 1। सॉरी ये गलत हो गया अपना। हमें चाहिए 9, हमें 3 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हर जगह पे 9 ही कॉमन लेंगे क्योंकि 3 आ रहा है यहाँ पे। यदि 9 चाहिए होता तो 9 आता। यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 9 3 जा, ये 3 हो गया। यहाँ पे 9, यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 यहाँ पे कैंसल। तो ये आ गया आपका 9m प्लस 1 where this m is equals to 3q plus 3q square plus 3q। Got it? 9m plus 1। ये भी आ गया, दूसरा भी आ गया। अब तीसरा चेक करेंगे। n is equals to 3q plus 2, n cube is equals to 3q plus 2 का क्यूब, that is of equals to। अब मैं डायरेक्टली ये अभी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ये निकालूंगा। a क्यूब मींस कितना? 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब बराबर। उसके बाद में 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b मींस 3, a स्क्वायर मींस कितना? 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, ये आ गया q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 a मींस 3 3 जा 9 and 9 4 जा 36 q एंड लास्ट में आएगा 2 का स्क्वायर 8। अंडरस्टूड? समझ गए? इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ये आप खुद करेंगे कैलकुलेशन और उसके बाद निकालेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम दिस 3 टर्म व्हाट वी विल टेक कॉमन? 9 को कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा आपके पास? 9 3 जा 27, हियर 9 8 जा नहीं, 9 5 जा 45 नहीं, कितना? 9 6 जा 54 ना, 9 6 जा 54 तो 6q स्क्वायर आ गया प्लस 9 4 जा 36 4q एंड प्लस 8। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको मान के चलता हूं m प्लस 8 where m is equals to 3q square plus 6q square plus 4q। Got it? मींस यहां पे आपको जो q मिला है वो या तो 9m है, 9m plus 1 है और 9m plus 8 है। तो यहां पे लास्ट वाला सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? The cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8 pause।